Assalamu alaikum to everyone. This is me, Rao Muhammad Kamal, and you are watching my YouTube channel, Nosif with Rao Kamal. Today we will discuss about consonants. As we have discussed in previous videos, that we have 44 sounds in English and there are 24 consonants and 20 vowels. Today we will discuss about 24 consonants and I have divided these consonants into four parts. Today we will discuss the first part, and in the later videos we will discuss the rest of the three parts, because I'll give the complete detail and the description of consonants. That's why it will take some time, and we are going to cover these consonants in four lectures. Thank you. So today, in first part, we will discuss only the general introduction of consonants, that what are the symbols for these 24 consonants and plosives. As there are four parts, I have divided plosives, fricatives, affricates and nasal, and lateral and approximants. Okay, so you can see here that these are the 24 consonants. You will notice one thing, that on the side of every consonant, every sound, I put two slashes. Two slashes mean it's a symbol, it's a sound, it's not alphabet. For example, just you will write P and you will not put the slashes around this, then it will be alphabet, it would not be sound. To make it sound, what you would do, you will put the slashes around that sound. For example, you can see the first, this is P, okay, because we have to tell just sound, not alphabet. If we will pronounce it like alphabet, then it would be P. It means there are two sounds, P and E. No, just we have to tell this sound like this, P. The second is B. The third is T. The fourth D. Next, now you can see that in symbol there is a T and another symbol. Collectively, it is called ch. You can write on your register and you can draw this symbol and you can write ch. And the next is j, k, g, like f. It's not f, just for the sake of understanding, I'm telling you like f. It's okay. The next is v, like v, v, v. And next is th, 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 as commonly we call it th. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. एंड द नेक्स्ट इज द, जिसे द हम बोलते हैं, द. ये दो साउंड्स हैं, इस पर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसे हम थ और द कहते हैं, जो कि स नहीं है. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग इट्स साउंड जस्ट. द नेक्स्ट इज z, next is sh, next is y, as in television, y. Okay, like m, n, ing, h, l, जो सिंगल आपको वन की तरह नजर आ रहा है, दिस इज ल, र, व, य. अब लास्ट साउंड अगर आप देखें, आपको अल्फाबेट में तो जे होता है, लेकिन हमने अल्फाबेट को अभी नहीं, अल्फाबेट के बारे में नहीं बात करनी. तो यहां पर आपने देखना है कि ये जो सिंबल है, जो ये की साउंड होती है, या ये वो सिंबल है. अभी हमने सिर्फ इसे गो थ्रू किया है. नेक्स्ट इन डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं. बेसिकली जब हम कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो देयर आर टू वेज. द फर्स्ट इज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड द सेकंड इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. In place of articulation, you are to tell that while pronouncing this sound, what organs are involved. Okay, place, what organs are involved. And the second is manner of articulation. So we can say in manner of articulation, we will see that how those organs behave, in what manner they behave. Okay, two things. One, place of articulation.
द सेकंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, जब अपने कॉन्सोनेंट्स को की डिस्क्रिप्शन देनी है, कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब करना है, तो ये दो चीजें आप बताएंगे। लेट्स गो फर्दर। ये मैनर्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कॉन्सोनेंट्स कैन बी प्लॉजिव्स, कॉन्सोनेंट्स कैन बी फ्रिकेटिव्स, consonants can be affricates, consonants can be nasals, consonants can be lateral, and consonants can be approximants, and approximants are also called semivowels. ये manners है। Now look at plosives किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमने इसे समझना है कि plosives किसे कहते हैं। plosives का दूसरा नाम है stops। इसमें तीन कंडीशंस होती हैं। अगर कोई भी साउंड ये तीन कंडीशंस पूरी कर रही है, इसमें आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपने अपने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने हैं। आपने जब ये तीन कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये प्लॉजिव्स है। नंबर वन, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द पैसेज। नंबर टू, प्रेशर बिल्ड्स अप। नंबर थ्री, सडन ओपनिंग ऑफ द पैसेज एंड एक्सप्लोसिव साउंड इज हर्ड। अब तीन, जब आप ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे जो कि प्लॉजिव्स है, इंग्लिश में 6 प्लॉजिव्स है। ओके, मैं अभी आपको ये मैंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ब। ब देखें, क्या हम अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि क्या जो ब साउंड है ये वाकई में प्लॉजिव्स है। अगर तो ये तीन कंडीशंस पूरी करता है तो प्लॉजिव्स है। नंबर वन, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द पैसेज। सबसे पहले आप देखें, आपके जो दोनों लिप्स हैं वो आपस में मिलकर कंप्लीट क्लोजर कर देते हैं, लाइक ओके, पहली कंडीशन हो गई। अब आपने करना क्या है, कंप्लीट क्लोजर के बाद आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, उसके बाद आपने बोलना है, तो आप फील करेंगे कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है। लाइक कहते कहते जैसे हम रुक जाए ना, आप फील करेंगे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, लाइक यस। दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि जब आप इसे बोल रहे हैं तो एक एक्सप्लोसिव साउंड आपको सुनाई देती है, लाइक ब, प, ट, द, क, ग। ओके, गुड। सो अब हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि इंग्लिश में ये 6 प्लॉजिव्स है। और प्लॉजिव्स क्यों है? क्योंकि ये तीन कंडीशंस पूरी करते हैं, कंप्लीट क्लोजर, प्रेशर बिल्ड्स अप एंड देन सडन, अचानक से ओपनिंग होती है। अब तीनों साउंड, 6 जो साउंड्स है, अब आप देखें तीनों ये अप्लाई हो रहे हैं, प, ब, ट, द, क, ग। ओके, गुड। इसके बाद हम सबसे पहले प और ब को लेंगे। ये तो आपको पता चल गया कि ये प्लॉजिव्स है। अब हमने देखना है कि इसमें प्लेस कौन सी इस्तेमाल हो रही है, ऑर्गन्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। जो कंप्लीट क्लोजर होता है, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द पैसेज विद द हेल्प ऑफ बोथ लिप्स। अब कंप्लीट क्लोजर कौन से ऑर्गन्स कर रहे हैं? दोनों लिप्स कर रहे हैं, लाइक प एंड ब, सिर्फ इन दो साउंड्स में। और बाकी वही प्रोसेस है, ठीक है, ये प्लॉजिव्स है। अब जो आपके दोनों लिप्स हैं, हम लिप को यहां कहेंगे लेबियल, ठीक है, हम यहां पर कहेंगे लेबियल, और दोनों लिप्स हैं बायलेबियल। ओके, और एक चीज मैं साथ में आपको बताता चलूं, यहां पर आप देख सकते हैं पा के साथ मैंने नेगेटिव का निशान लगाया हुआ है और बा के साथ मैंने प्लस का निशान लगाया हुआ है। जिस साउंड के साथ प्लस का निशान होगा इट्स मीन वो वॉइस्ड है, और जिसके साथ माइनस का नेगेटिव का निशान होगा वो वॉइसलेस है। यानी कि जो वॉइसलेस है, बोलते वक्त वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन नहीं है, और जो वॉइस्ड होती है उसमें बोलते वक्त जो वाइब्रेशन है। अब हम इन दो साउंड्स को कैसे बताएंगे? जो पा है, बेसिकली हम पा को कहेंगे कि ये वॉइसलेस बाइलेबियल प्लॉजिव है। वॉइसलेस बाइलेबियल प्लॉजिव। वॉइसलेस क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन नहीं है। बाइलेबियल क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बतानी है हमने कि इसमें दो लिप्स इन्वॉल्व है। और प्लॉजिव वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आपने कहना है कि जो पा है दिस इज वॉइसलेस बाइलेबियल प्लॉजिव, और जो बा है दिस इज वॉइस्ड बाइलेबियल प्लॉजिव। अब हमारे पास 6 जो है प्लॉजिव्स हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो बाइलेबियल प्लॉजिव्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं त और ड। अब आप देखें कि जो कंप्लीट क्लोजर होता है, आपकी जो टंग है, द पार्ट जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ, जो एल्वियोलर रीज है, उसे टच होती है और कंप्लीट क्लोजर करती है। अब इसी तरह ट कहते कहते रुक जाए, आप देखें
कंप्लीट क्लोजर और प्रेशर बिल्डअप होता है, फिर सडन ओपनिंग होती है ट ड। अब हमने देखना है कि जो क्लोजर होता है वो किसकी मदद से होता है। आपकी टंग जो है वो एल्व्यूलर रिज को टच होती है और एल्व्यूलर रिज जो है वहां कंप्लीट क्लोजर करता है, इसलिए ये एल्व्यूलर प्लॉजिव्स है। अब प्लेस को हमने ऐड कर दिया, जैसे बाइलेबियल प्लॉजिव्स थे ये एल्व्यूलर प्लॉजिव्स है। लेट्स सी नाउ ट। अब जो ट है ये वॉइसलेस है, ड जो है ये वॉइस्ड है, तो ट को हम कहेंगे वॉइसलेस एल्व्यूलर प्लॉजिव एंड ड को हम कहेंगे वॉइस्ड एल्व्यूलर प्लॉजिव्स। नेक्स्ट हमारे पास क और ग है। आप देखेंगे क और ग यहां क्लोजर होता है, सॉफ्ट पैलेट, आपका जो विलम, आपका जो व्हीलर है वो। अब इसी तरह आप ग को कहते कहते रुक जाए, ग ग, तो आप देखेंगे यहां प्रेशर फील होता है, इसका मतलब जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्लोजर करता है, जिसे हम व्हीलर कहते हैं, इसलिए ये व्हीलर प्लॉजिव्स है। जो क है वो वॉइसलेस व्हीलर प्लॉजिव है और जो ग है वो वॉइस्ड व्हीलर प्लॉजिव है। ओके, अब हमने क्या देखा, हम इसे रैप अप करते हैं कि इन इंग्लिश देयर आर 6 प्लॉजिव्स इन इंग्लिश। ओके, प्लॉजिव क्या होते हैं? नंबर 1 कंप्लीट क्लोजर, नंबर 2 प्रेशर बिल्ड्स अप, नंबर 3 सडन ओपनिंग। ओके, अब हम इन मैनर के साथ, ये मैनर है प्लॉजिव, प्लॉजिव मैनर है और इसके साथ प्लेस ऐड करते हैं। 2 bilabial plosives, 2 alveolar plosives and 2 velar plosives। आई होप कि आपको आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रिकेटिव्स डिस्कस करेंगे कि कितने फ्रिकेटिव्स होते हैं एंड व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिकेटिव्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।